نورگن میں ہجومی نفرتی تشدد معاملے پر کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ نے بلائی پریس کانفرنس۔ محاذ میں شامل جماعتوں اور تنظیموں نے اخباری بیان جاری کرتے ہوئے 17 جنوری کو وقوع پذیر نفرتی ہجومی تشدد کے نتیجے میں شہید ہوئے 19 سالہ سمیر اور دوسرے شدید زخمی نوجوان شمشیر کے خلاف کیے گئے جرائم میں ملوث مجرموں کی گرفتاری کی گئی مانگ۔ معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا مولانا یوسف کنی صاحب نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، نرگند میں 17 جنوری کو ایک پری پلان ہم کہہ سکتے ہیں، 2 مسلم نوجوانوں پر حملہ ہوا اور اس میں سمیر یہ نوجوان جن کی عمر 19 سال ہے، چھوٹا سا کاروبار وہ کرتے تھے، کسی جگہ پر کام بھی کرتے وہ اور ان کے دوست شمشیر، یہ دونوں اپنے کام کو ختم کر کے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ ایسے موقع پر ایک 18 سے 20 شدت پسند نوجوان جن کا تعلق رام سینا سے اور اس طرح کے اور تنظیموں سے ہے، 18 سے 20 نوجوان ان پر اچانک حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دونوں شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک نوجوان سمیر چونکہ کافی خون ان کا بہہ گیا اور دوسرے دن وہ انتقال کر گئے۔ اسی طرح سے شمشیر بھی کافی زخمی ہو گئے تھے، ان کو ہبلی کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا، ابھی وہ زیر علاج ہیں۔ ویسے یہ واقعہ ہونے کے بعد مختلف تنظیمیں، افراد، جماعتیں، شخصیات وہاں وزٹ کر رہے ہیں، لیکن اخباری بیان جاری کرتے ہوئے جمعیت العلماء کرناٹک ارشد مدنی گروپ کے صدر مولانا عبدالرحیم رشیدی صاحب نے کہا کہ ہمارے اندر سے یہ ڈر اور خوف نکل جائے اور جو بھی ایسا حادثہ ہے بر وقت قانونی کارروائی کرنے کے لیے پرعزم رہیں۔ قانونی اعتبار سے ہمیں اپنا حق ضرور لینا چاہیے، اس کے لیے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا نے انگریزی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کا حصول ہر بات پر مقدم ہونا چاہیے۔ صبر اور تحمل سے قانونی کارروائیوں کے ذریعے انصاف کے حصول کو ممکن بنانا ہوگا۔ Justice that should be maintained at all costs. We have seen a ghastly incident happen at Nargund about 10 days ago, and this was not an isolated incident, but this has happened as a culmination of what has gone in the last few weeks or a couple of months in that area. And as a culmination of that, this instance of violence and where 2 innocent victims have been attacked has come to light. And as has been expressed by our other dignitaries here, they have not been properly compensated, they have not been visited by the concerned authorities, and due efforts to maintain communal harmony and peace and confidence in the people have not been taken to the extent it is necessary. So there is a need to curb this, and hate speech is a culpable offence. This should be taken care of, and due action must be taken on those elements who are raising such voices which create differences between the communities. So it is important that this atmosphere of peace should be maintained by all concerned authorities as well as by the people themselves. We urge our Muslim brethren also to show restraint and patience in their response, and be wise in not overreacting to the situation, which will only aggravate and polarize the society further.
Rather, we should take recourse to law, we should take recourse to patient struggle and fight for our rights in a legal manner. सुन्नी जमात के हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार नूरी साहब ने हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन पार्टियों को जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेकर मुंतखब हुए हैं आवाज़ देते हुए कहा, मैं अपोजिशन पार्टी जो सेकुलर के नाम पर आगे आई है, जो सेकुलर के नाम पर उसने वोट लिया है और हर जगह रियासत को एक जगह बनाने की उसने बात की है, तो उसके लीडर आगे आएँ और बिलखुसूस मुस्लिम जो लीडरान हैं वो भी आगे आएँ जिस कौम के नाम पर उन्होंने वोट लिया है। आज हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा महाज इस तरह की दूसरी तंजीमात वहाँ पर जा रही हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टी की तरफ से, बल्कि मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई वहाँ पर कोई मदद नहीं है, न मुस्लिम लीडरान की तरफ से वहाँ पर कुछ मामलात हो रहे हैं। तो हमारे साथ साथ उनकी भी यानी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामलात को लेकर मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन पार्टी दोनों मिलकर रियासत कर्नाटक के हालात को ख़राब होने से बचाएं। अभी जो कातिल, जो जालिम बाहर घूम रहे हैं, उनको जेल की सलाखों में भेजकर आने वाले जो जुर्म होने वाले हैं उनको रोका जा सकता है। मौलाना एजाज अहमद नदवी जमात अहले हदीस ने कहा, हालात दिगर से दिगरगों होते जा रहे हैं, हुकूमत होश के नाखून ले। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि अपने बाशिंदों के दरमियान इंसाफ न करे। हालात जो हैं वो दिगर से दिगरगों होते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए तो मुमकिन है हालात और भी बदतर हो जाएं, क्योंकि जालिम के हौसले जब बुलंद हो जाते हैं और मज़लूमों के अंदर खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो जाता है तो आपस में एक दूसरे से दूरियां बढ़ जाती हैं और अपने जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसान कोशिशें करने लगता है। क़ब्ल इसके कि ऐसे हालात पैदा हों कि मज़ीद हालात बिगड़ जाएं, हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में पहल करे, अमन व अमान को बरकरार रखे, लोगों की एतमाद को जीतने की कोशिश करे। इस सिलसिले में जो भी कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए उसको होना चाहिए और उस पर पहल करनी चाहिए। हम हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि आइंदा इस तरह के हालात ना पैदा हों, इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हों। इस मौलाना इफ्तिखार कासिमी साहब ने खदशा जाहिर किया कि FIR में दर्ज की गई दफ़ात को तब्दील किया जा सकता है ताकि आसानी से बेल हासिल किया जा सके। नरगुन में जो FIR किया है, जो दफात लगाई गई है, उन पर खदशा जाहिर किया जा रहा है चार्जशीट से पहले वो दफात बदल दी जाएंगी और ऐसी दफात लगा दी जाएंगी जिनसे उनका बेल पर आना बहुत आसान हो जाएगा। ये इन कार्रवाइयों में जो हुकूमतें या अफराद मुलव्वस हैं वो सबसे पहले तो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे। इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को ये सोचना चाहिए कि मुल्क को नुकसान होने वो कैसे बर्दाश्त करें। जब मुल्क की बात आती है तो सड़कों पे निकल आना चाहिए। इस मुल्क पर कोई आंख उठाता है तो उसकी आंख फोड़ देनी चाहिए, कोई उंगली उठाता है काट देनी चाहिए। तो क्या ये लोग जो फिरका परस्ती कर रहे हैं वो मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? क्या इनके खिलाफ हमें सड़कों पे नहीं निकलना है? क्या हमें अपनी आवाज बुलंद नहीं करना है? क्या इनकी इन हरकतों पर रोक नहीं लगाना है? जाहिर सी बात है हुकूमतों को भी आगे आना। APCR के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज साहब ने तफसीलात बताते हुए कहा कि जानबूझकर मंसूबाबंद तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया और 2 नौजवानों को शहीद किया गया। केस को वीकन करने के लिए पूरी कोशिश, जो दबाव है पुलिस अथॉरिटी के ऊपर, वो दिख रहा है। सर अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, क्या करेंगे, कानूनी कार्रवाई? देखिए हमारा डिमांड क्या है इसमें, जो हेट स्पीच की वजह से ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये आज का ऑन द स्पॉट हुआ, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये उसके पीछे एक प्लान है। क्योंकि ये इसके पहले भी हेट स्पीच कंटिन्यूसली दे रहे थे। वो बजरंग दल का लीडर संजू नलवड़ी बोल के एक बजरंग लोकल लीडर है और उसके और दूसरा भी बजरंग दल और RSS का जो लीडर है वो हेट स्पीच करते जा रहा है। वो इसके वजह से ये एक्शन रिएक्शन हुआ है। ये
इसलिए उनका ये नफ़रत है ना, उनके ऊपर नफ़रत था, इसलिए वो जो 17 जनवरी को ये उन्हें नंजू नलवड़ी बोल के एक हेट स्पीच दे रहे थे और सेम डे इवनिंग जो लोग हैं वो जो बजरंग दल जो गुंडा लोग हैं वो उनके लिए किसी न किसी को मुसलमान को मारना था, इसलिए वो वेट कर रहे थे विद त्रिशूल, तलवार और अदर डेडली वेपन के साथ। जो इनोसेंट बेगुनाह है शमशीर और शमशीर उसी टाइम में वो लोग उनका ये घर को जा रहे थे, उनको मारा गया। तो आप क्या करेंगे, कानूनी कार्रवाई क्या है? कानूनी कार्रवाई क्या है, हमारा डिमांड क्या है, उनको जो हेट स्पीच है जो कंटिन्यूसली आ रहा है उनके ऊपर हाई कोर्ट में एक केस दाखिल करने के लिए हम सोच रहे हैं और उसके ऊपर सेम टाइम उनके ऊपर जो भी नफरत ये हेट स्पीच दे रहा है उनके ऊपर भी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह।